Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are extremely grateful to you that you joined us, given some time, participated in such a beautiful function, and actually you have beautified this function. We thank you all, and I must not forget to thank Mr. Asif and the team along with Ma'am Hina and all the other faculty members of English Language Club to arrange such a beautiful function, to buck you up, to give you the opportunity so that you can improve your confidence, etc. I'm extremely thankful to Almighty Allah for giving us the courage and the opportunity to have our says. And again, thank you very much that you have relied on us. You thought that we could do something for the betterment of your life. Alhamdulillah. We usually give you these sort of topics so that you can research, get some points, and match the points that you have and reach a point which is extremely convincing. You have so far done, alhamdulillah, a great job, but I still see that you spend most of your time on internet by doing different sort of activities, but you do not search the information that you require. I seldom see students quoting Islamic verses or the ahadith of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, which we believe that the only testament that could save our life in this world and the hereafter. We usually give quotations of different scholars, and it's a good thing as well. Ta'alu ila kalimatin saba'in baynana wa baynakum. We need to collect or gather commonalities. But remember, Allah says, Al-yawma akmaltu lakum deenakum. Deen has been completed, and we have got the real nusha, which Allama Iqbal says, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया. Now we don't need any other nusha or solution or medicine. Let us come to the topic, generation gap. As everyone knows the definition of GG, generation gap. I did not actually get time to have slides. To speak on the topic means that you have to write a book on it because you have to research so many things. So I have got my diary with me. I have taken some notes, and I may need to get help from my notepad, inshallah, because I haven't been able, extremely busy nowadays, couldn't get time to make slides. However, I have something, inshallah, to show you, to convince you. It is clear that generation gap means differences of ideas, your beliefs, your approaches. Okay, whatever the gap you see in your society, in my opinion, that is generation gap between your parents and children, even your grandparents or grandchildren, etc. And I think that it's a good thing. We cannot eliminate it. हम इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं. However, we can minimize it. और इसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना भी नहीं चाहिए. You getting me or not? But we should know the duty of ours or the purpose of our life. हमें अपनी ज़िंदगी के मकासद का पता होना चाहिए. As I told you earlier, that the only or the last testament has been revealed. आखिरी नुस्ख़ा कीमिया आ चुका है. Now what we need to do is, we need to alter or tailor our lives according to the situation. Having the Old Testament before us, उस टेस्टामेंट को सामने रखते हुए हमने अपनी ज़िंदगियों को alter करना है, adjust करना है. We should be flexible. हमें flexible होना चाहिए. There are so many technological advancements in the market. They are acceptable. हो रही हैं, हमें उनको adopt भी करना चाहिए, और जो इसको adopt नहीं कर रहा वो मुआशरे में ज़िंदा नहीं रह सकता. Ladies and gentlemen, प्यारे बच्चों, बात ये है
कि न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आने के बाद हमारी जिंदगियों में क्या आप ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो जाए? मॉडर्निज्म तो हमारी जिंदगी में आए, लेकिन अगर आपका किरदार ना बचे, आपका ईमान ही ना बचे, आपकी असल सोच ही ना बचे, तो उस न्यू टेक्नोलॉजी को या डेवलपमेंट्स को अपनाने का क्या फायदा है? वो नई टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट किसी तरह की भी, या कोई नया लिबास या कोई नया हेयर कट या इस तरह की और बहुत सी चीजें अगर मार्केट में आती हैं और हम उसको अपनाते हैं, उससे हमारी शनाख्त ही बिगड़ जाती है, तो क्या आप उस एडवांसमेंट को अपनाना चाहेंगे जो हमारी रिकग्निशन का बेड़ा गर्क कर देती है, जो हमको हमसे ही चुरा लेती है? मैं उस टेक्नोलॉजी या उस नॉलेज या मॉडर्न एजुकेशन का मुझसे क्या लेना देना? मैं फिर रिपीट करता हूं कुरान पाक की वर्ड्स, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेहतरीन दीन अल्लाह की नजर में इस्लाम है। उस पे चलना कैसे है वो लास्ट टेस्टामेंट में आ चुका है। एग्जाम्पल अब मैं ये देता हूं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दिया तब उन्होंने कहा, और ये आयत नाजिल हुई कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हो चुका है। अब जो यहां पर मौजूद नहीं है, मेरा पैगाम ये उन लोगों तक पहुंचा दो। पूरे का पूरा जिंदगी गुजारने का तौर तरीका आ चुका। मैं आगे बढ़ने से पहले जो ऑब्लिगेशंस हैं, रिचुअल ऑब्लिगेशंस हैं, मैं उसकी बात करता हूं। क्या नई टेक्नोलॉजी, क्या नया इल्म आने के बाद हमारी नमाज पढ़ने का तरीका बदल गया? बोलिए नहीं। क्या न्यू टेक्नोलॉजी और नई टूटियां और फुवारे आने के बाद वुजू करने का तरीका बदल गया? क्या जो कारपेट हम अपनी मसाजिद में डालते हैं, जो हम ये शैंडलियर लगाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं और ये माइक का बंदोबस्त वहां पर करते हैं, ये सारा कुछ होने के बाद हमारी सफों में खड़े होने का अंदाज बदल गया? क्या नई टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारा किबला बदल गया? हमारे माँ बाप बदल गए? मेरा नाम बदल गया? बदला तो बदला क्या, मेरी सोच बदल गई। हमारी जो बेस थी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नहीं बदलनी चाहिए, दुनिया बदल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमारा खाने का अंदाज बदल गया। क्या हम ऐसे हवा में उछाल के मुंह खोल के खाते हैं? क्या हम पाइप लगा के पानी पीते हैं? क्या हम मोटर बाइक पे बैठ के नहाते हैं? बोलिए नहीं। आपकी बेस तो वही है। खड़े होके सोना शुरू कर दिया आपने, फ्रिज में सोना शुरू कर दिया। बोलिए बेसिस तो वही है। खाना आपने धूप में पकाना शुरू कर दिया। हाँ, माइक्रोवेव ओवन्स आ चुके हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन होती तो वो हीट ही है। कोशिश करें, पहली बात तो यह है कि जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो तब्दीली उस इंसान को खुद बदल देती है। अब मैं आता हूं जनरेशन गैप की तरफ। जनरेशन गैप रहना है, मैं आपको ये बताऊं क्यों रहना है। क्योंकि न्यू एडवांसमेंट्स आपकी होती रहनी है और होंगी भी। अब हमारे वालिदैन ने 1992 में या 1980 में बीए किया या एफए किया, तब तालीम कोई और थी, अब तालीम कोई और है। मुझे गिला है गवर्नमेंट से, मुझे गिला है तालीम के बड़े बड़े टाइकून से कि मोबाइल फोन का अगला वर्जन आ जाता है और हम वो ले लेते हैं। मर्सिडीज का अगला मॉडल आ जाता है, वो हम ले लेते हैं। सब लेते हैं ना। कोई नया फैशन मार्केट में आता है तो वो हम अपना लेते हैं।
लेकिन मेरा गिला एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये है कि मैंने 1992 या 2000 में बीए किया, मेरा बीए वही दकियानूसी बीए का बीए ही रहा। मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई गई कि तू अपने बीए को अपग्रेड कर ले, उसको रीन्यू कर ले। तो मैं उसी दुनिया की तालीम रख के मुआशरे में जो मैं काम कर रहा हूं और अभी तक मैं वही करता रहा हूं। होना क्या चाहिए कि हमने अपनी एजुकेशन को भी अपग्रेड हमें करना चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसको पाबंद बनाए कि आप अपनी एजुकेशन को साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद उस बीए का दोबारा से टेस्ट होना चाहिए। मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूं कि अगर आपने जो मैट्रिक किया था आज से 8-10 साल पहले, अगर आपको दोबारा से मैट्रिक के पेपर देना पड़ जाएं तो क्या आपके मार्क्स उतने ही आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उस वक्त के लिए वो पढ़ा, मार्क्स के लिए पढ़ा और आप भूल गए। यही हाल हमारा जिंदगी का है कि हम मॉडर्न एजुकेशन जैसे जैसे मार्केट में आती है हम उसको अपनाते नहीं हैं। जो जो तब्दीलियां मुआशरे में आते हैं हम उसको अपनाते नहीं हैं। मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि अपने आप को और अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। फिर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस तिलावत की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सब जिम्मेदार हो, तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। फिर मैंने एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको तिलावत करके फरमाई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स का भी तुझ पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और तीसरी बात फरमाई तुम्हारे वालिदैन का भी तुम पर हक है, और तुम्हारे रिश्तेदारों का भी तुम पर हक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। वो सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे लाइफस्टाइल ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि कामयाब है और जिसको आप अपनाना चाहेंगे? जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं प्लीज। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा सूबा है जिसके फैमिली सिस्टम को आप अपनाना चाहेंगे, जिसके लाइफस्टाइल को सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक मुकम्मल तौर पर उसको अपनाना चाहेंगे? और फिर मैं पूछूंगा कि क्यों अपनाना चाहेंगे? कौन सा ऐसा मुल्क है या शहर है जहां जिंदगी गुजारने का तरीका बेहतरीन मुयस्सर है? नाम लीजिए। अमेरिका का नाम लीजिए, यूके का नाम लीजिए, जर्मनी का, कनाडा का नाम लीजिए, लेते जाइए नाम। बोलिए लेडीज एंड जेंटलमैन। बोलो तो सही जी बेटा। टर्की, इनको माइक दीजिए। इनका कहना है कि तुर्की में बेहतरीन निजाम जिंदगी है, वहां पे औरतों की देखभाल की जाती है। क्या वहां औरतें मर्दों की तरह काम नहीं करती? क्या वहां जनरेशन गैप नहीं है? क्या वहां ओल्ड हाउसेस नहीं हैं? इनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर कहीं नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो पाकिस्तान में भी है। It's a welfare society, so I would prefer, you know. आप उनका निजाम लेना चाहेंगे? नामुकम्मल निजाम लेना चाहेंगे? Sir, obviously I will do because it is relatively the best. All right. One of the best, not actually the best. Alright. लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दूं जिसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी तो क्या वो आप नहीं लेना चाहेंगे? Obviously. डेफिनेटली लेना चाहेंगे। और मुझे ये बताइए कि वो ऐसा निजाम है जिसको अमेरिका भी अपनाना चाहता है? बोलिए, तुर्की का निजाम। वो ऐसा निजाम है जिसको इंग्लैंड भी अपनाना चाहता है? वो ऐसा निजाम जिसको भारत भी अपनाना चाहता है, जिसको पाकिस्तान भी अपनाना चाहता है? बोलिए, नो। तो मतलब ये हुआ कि उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। पहली बात ये है कि तुर्की वाले या दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या उनको नहीं पता हमने मर जाना है? क्या उनको नहीं पता कि एक दिन यौमे हशर आना है?
सवाल जवाब किया जाएगा हमारे किए दरे का। बहुत से लोग नहीं जानते। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये दुनिया वैसे ही बनी, हम आगे हैं, जानवरों की तरह, पौधों की तरह मर जाएंगे, खप जाएंगे, दोबारा नहीं उठाया जाएगा। हमारा इम्तिहान है, दिस वर्ल्ड इज मता, दिस इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। दुनिया में भेजे गए और साथ ही एक नुस्खा कीमिया दे दिया गया। कुरान पाक की आयत में तिलावत करके फरमाइए आपको कि तुम और अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, और उसका तरीकेकार दिया गया। अब हमारे वालिदैन हमारे बच्चों का करते क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली गलती वो क्या है, मैं इसके आपको कॉजेस बताता हूं कि हम जब बच्चे हमारे दुनिया में आए तो हमने सबसे पहले उनको बताया ही नहीं कि अल्लाह कौन है। हमने अपने बच्चों को कतई तौर पर नहीं बताया कि मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने अपने बच्चों को पैदा होते ही फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया, अलिफ आम और बे बकरी सिखाना शुरू कर दिया। छोटी उम्र में ही उनको यह कहना शुरू कर दिया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के एक अच्छा इंसान बनो ताकि तुझे नौकरी मिले, ताकि तुम मुआशरे में अच्छी नौकरी करके अपनी जिंदगी को आसान कर सको और बेहतरीन जिंदगी गुजार सको। मुझे ये बताइए, कुरान पाक की कौन सी ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अपने बच्चों से प्यार करो? कोई आयत याद हो आपको? कोई भी आयत इस तरह की आपको नहीं मिलेगी। अब कुरान पाक में अल्लाह ये फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो और वालिदैन की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। वबिल वालिदैनि एहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। इन चार बंदों के साथ हुस्न सलूक करने के लिए कहा गया, जो कि हम नहीं करते। फिर कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम अगर अल्लाह और उससे रसूल से हटके किसी चीज से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे लिए तबाही। और हम अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो कतई तौर पर पैदा नहीं करते। हम अपने बच्चों को इस दुनियावी जिंदगी की जो लज्जत है वो सिखाते हैं। 6 घंटे के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजते हैं, 8 घंटे के लिए भेजते हैं। मकसद सिर्फ उनका यही है कि मैट्रिक कर लो, मैट्रिक कर लो, एफए कर लो, बीए कर लो। मुझे ये बताइए, अभी जिस बच्चे ने 1090 मार्क्स लेके पोजीशन ली है गुजरांवाला बोर्ड में या लाहौर बोर्ड में, उसके पास क्या है सिवाय मार्क्स के? 13 साल स्कूल में पढ़ने के बाद सिवाय उसके पास डिग्री के अलावा और क्या है? क्या उसको उसकी शनाख्त करवाना सिखाई गई? क्या उसको उसके वालिदैन की इज्जत करना सिखाई गई? हमसायों के हुकूक सिखाए गए, औरतों के हुकूक सिखाए गए, बच्चों से मोहब्बत करना सिखाया गया? बताइए। अब उसका अगला स्टेप क्या होगा कि अब मैं इंटरमीडिएट में भी टॉप करूं, और उसका अगला स्टेप ये होगा मैं बैचलर्स में भी टॉप करूं, मैं मास्टर्स में भी टॉप करूं और मुझे बेहतरीन नौकरी मिल जाए। यही है और क्या है। इसी वजह से तो मुआशरे में खुशहाली नहीं है, क्योंकि जो असल करिकुलम था वो हमारी जिंदगियों में से निकाल दिया गया। ये बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप कल कला आपकी शादी होनी है और आपके बच्चे होने। अब जानिए वालिदैन की जिम्मेदारी। वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी फूड देना। मैंने लंबी लंबी चीजें लिखी हुई हैं, आप मुझे बताते जाइए वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है। अपने बच्चों को खुराक देना और कपड़े देना और रिहाइश देना, और चौथी चीज तालीम देना। बस है जी, दीन का इल्म देना और अच्छी तरबियत देना। लो जनाब आला, तुहाडे वास्ते गमला लियांदा। अब ये मेरा बच्चा है और मैं इसका वालिद हूं या वालिदा हूं। मैं क्या करता हूं? सुबह उठता हूं, इसको पानी दे देता हूं, पानी दे के मैं अपने काम पे चला जाता हूं। और इसको क्या चाहिए?
और मुझे याद आया हाँ इसको खाद भी डालनी थी। मैं फिर आता हूँ, थोड़ी सी इसमें खाद डाल के फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। फूड भी हो गया, शेल्टर देना था मैंने, ओहो हो इसको तो मैंने कवर करके रखना था, मैं उसको उठा के इसको थोड़ा सा अंदर कवर करके रख देता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ, काम पे चला जाता हूँ। पूरा हो गया, ओहो हो। फिर मुझे याद आया कि इसकी तरबियत भी करनी है। तरबियत मैं कैसी करूं? तरबियत करने के लिए मुझे इसके पास बैठना पड़ेगा, मुझे इससे बातें करना पड़ेंगी। लेकिन मैंने क्या किया, इसकी तरबियत करने के लिए मैंने उसको स्कूल में फेंक दिया और फिर मैं काम पे चला गया। 6 घंटे के बाद फिर वो वापस आया, ठीक है, हाँ बिल्कुल पत्ते ठीक हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं ट्यूशन वाली बाजी या एक बंदा इसको लगा देता हूँ, इसकी मजीद देखभाल करो, तरबियत करो इसकी। फिर मैं इधर आ जाता हूं। इस पौधे की जरूरियत क्या है, पहले मुझे ये बताइए। इस पौधे को क्या चाहिए? पानी, दूसरी चीज खुराक, तीसरी चीज सनलाइट, चौथी चीज हिफाजत चाहिए। इसको पेस्टिसाइड्स भी देने हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी देने हैं, ताकि इसको जो कीड़े लगे वो इसको कीड़े ना लगे, इसकी ग्रोथ अच्छी हो। हम अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल इस पौधे की तरह कर रहे हैं, हटके नहीं, और समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं इससे पूछता हूँ, बच्चा तुझे खुराक भी दी मैंने, बच्चा तुझे अच्छा माहौल भी मैंने दे दिया, बच्चा तुझे मैंने प्रोटेक्शन नहीं दी। हम अपने बच्चों को जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो नहीं देते, फिल्टर नहीं करते, सॉफ्टवेयर नहीं लगाते, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर हम नहीं लगाते, इसमें कीड़े आ जाते हैं। हमारी नजर में सिर्फ इसकी परवरिश ये है कि ये पले बड़े और एंड पे क्या हो, ये फल दे। फल से मुराद मेरी ये है नौकरी चंगी लगे, 50,000 लाख रुपया लेके आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी तरबियत करने के लिए मुझे इसे वक्त देना पड़ेगा। इसको अपने साथ प्यार करने के लिए मुझे इससे बातें करनी पड़ेंगी, मुझे इसकी कंघी करनी पड़ेगी, मुझे इसके बाल जो बाहर निकले हैं वो काटने पड़ेंगे, मुझे इससे बातें करनी पड़ेंगी। और नई रिसर्च ये भी बताती है कि आपको पौधे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ये खुश भी होते हैं और ये नाराज भी होते हैं। एक इंसान जो कि बेहतरीन उस्ताद है, एक इंसान उसने जंगली घोड़े को सुधा लिया। आपने क्या किया, अशरफुल महलूकात, इसने जो जंगल का बादशाह था उसको जंजीरें पहनाई इसने। ये कौन है उस्ताद? एक इंसान के जंगली बादशाह को भी, शेर को भी सुधा लिया और उसके साथ करतब करने शुरू कर दिए। इससे बढ़ के इंसान के पास और स्किल क्या हो सकती? लेकिन यही उस्ताद, यही वालिदैन की जब अपने बच्चों की तरबियत की बारी आई तो उसको भी यही सिखाया गया कि तेरा कारोबार चंगा होना चाहिए। अब ये जो आपका बच्चा है, इसकी जरूरियात क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आप बच्चे हैं या बच्चे रहे हैं, मुझे ये बताइए आपकी जरूरियात क्या क्या थी? खाना मिल जाए 2 वक्त का, और कपड़े मिल जाएं, और तालीम मिल जाए, और पहचान मिल जाए, और सुकून मिल जाए, और इज्जत मिल जाए, वगैरह वगैरह। और ये सारा कुछ आपके वालिदैन कर तो रहे हैं, लेकिन खुद आपके पास नहीं है। फिर होता क्या है कि ये जो बच्चे हैं इनको कुछ ना कुछ चाहिए। अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि इंसान, अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो वो कम से कम 20 या 25 सेकंड तक उस गैप को फासला रख सकता है। 20-25 सेकंड तक शायद वो अगर कुछ भी ना करे तो वो खुश रहेगा। 20-25 सेकंड तक अगर हम अपनी बात करें पुराने दौर की, तो आधा मिनट, एक मिनट भी अगर हमारा गुजर जाता था तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन ये वाला जो स्पैन है टाइम का, आजकल कम हो कि शायद 5 सेकंड्स रह गया है, कि हम 5 सेकंड्स
तक अपने आप को फ्री रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हमारी सोच को कुछ ना कुछ चाहिए। इसीलिए सुबह उठते ही आप कोई और काम नहीं करते, साथ मोबाइल फोन देखना शुरू कर देते। आप ये देखिए कि आप कितने मसरूफ हैं, और आपके बच्चे मसरूफ नहीं हैं, वो इंसान नहीं है। वालिदैन का हक या जिम्मेदारी, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वालिदैन बनने लगे हो। आप देख लें अपना आपका फ्यूचर क्या है। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं करते तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जो उनके साथ हुआ है। फिर आप इस चीज को किसी को रिस्पॉन्सिबल मत बनाइएगा। मैं वालिद और मेरे बच्चों की वालिदा अपने बच्चों को बेहतरीन मेयारे जिंदगी देने के लिए दोनों कमाना शुरू कर देते हैं। अच्छी बेहतरीन दुनिया की सारी फैसिलिटीज देने के लिए वालिद क्या करता है, वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाता है। किस लिए? मैं अपने बच्चों को कमा के दे लवा, अच्छी जगह रहें, अच्छी रिहाइश हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फोन हो, इंटरनेट हो, केबल नेटवर्क हो, सारा कुछ हो। और वालिदा भी उसको अच्छा करियर बनाने के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज में भेजती है। ये सारा कुछ आप नहीं कर रहे हैं। और फिर कल कला कहते हैं कि अब मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरा बच्चा कल कला क्या अभी इज्जत नहीं करता है। क्योंकि हर बंदे को अपनी अपनी दुनिया तो मिल चुकी। आपने अपने बच्चों को एक ऐसी विंडो दे दी है जिसको खोलने के बाद ना उनको मां की जरूरत है, ना बाप की जरूरत है, ना दादी की जरूरत है, ना भाई की जरूरत है। क्योंकि वो जो गैप था 5-7 सेकंड का, और जो उसकी जरूरत थी नफ्सियाती तौर पर, वो तो आपने उसको दे दी। मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है? कौन सा ऐसा बंदा आप में से है जो काम करना चाहता है? कौन सा ऐसा बंदा है जो ये कहे कि नहीं हूं मैं खेड़ खेड़ के थक गया हूं, मैं पढ़ लवा? बोले कोई भी नहीं। ये तो इंसान की फितरत है। लक़द हलकनल इंसान फी कबद। इंसान को कमजोर पैदा किया गया है, इंसान को लालची बनाया गया है, इंसान को नाशुक्रा बनाया गया है। हमने नेचर के खिलाफ काम नहीं करना है, लेकिन जो टेस्ट है वो तो ओखा है और उसकी तैयारी भी ओखी है, फिर फ्रूट मिलना है ना। हमारे दौर में हमारी माएं कहां करती थी कि तू 1 घंटा बस खेलना है तो उसके बाद घर आ, नहीं कहते थे। क्यों कहते थे? हमारे वालिदैन कहते थे कि तू कोक नहीं पीनी, तू बाजार दी रोटी नहीं खानी, तू KFC मैकडॉनल्ड नहीं जाना, तू सैर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो इसकी देखभाल कर रहे होते थे और हमें गुस्सा चढ़ा होता था। दिल ही दिल में अपने वालिदैन को बुरा भला कह रहे होते थे। रात के 8 बज गए घर आ, रात के 10 बज गए घर आ, मुंडिया नाल नहीं फिरना। क्यों नहीं फिरना यार? अच्छी परवरिश। क्योंकि उनको पता है कि कल कला यही डेवलपमेंट जो 12-14 साल की है मेरे बच्चों के फ्यूचर में काम आएगी। फ्यूचर आप जब घर जाते हैं तो अड्डे बच्चे देखिएगा, सोचिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, सारा कुछ छोड़ के आपकी तरफ भागते हैं? नहीं भागेंगे, क्योंकि आपने उनको मां और बाप का प्यार पहले ही हाथों में दे दिया था। करना हमने क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? हमने अपने बच्चों को जो असल तरबियत है, जो असल करिकुलम है, उसकी तरफ लेकर जाना। वालिदैन का फर्ज क्या है? वालिदैन ने अपने बच्चों को गिर्द रहना है। कभी आप गुलिस्तान गए हैं, बाग में गए हैं? बाग में आपको अच्छे फूल, पौधे, फल नजर आते हैं कि नहीं नजर आते हैं? पैदा तो अल्लाह ने किए, लेकिन उसको खूबसूरत किसने बनाया? माली ने। माली ना हो तो उसका हाल क्या होता है? उजड़े गुलिस्तान की तरह। शायरों ने तो शायरी भी की है, मेरी जिंदगी उजड़े गुलिस्तान की तरह, क्योंकि मेरी जिंदगी का माली मर गया,
खप गया। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी शादी हो, अल्लाह करे अच्छी जगह हो, और जब आपके बच्चे हो जाएं आपकी जिंदगी खत्म। मैं रिपीट करता हूं, जब आपकी शादी हो, अल्लाह आपको खुशियों वाली शादी करवाए, और जब आपके बच्चे हो जाएं आपकी जिंदगी खत्म। इसी तरह जब कलमा पढ़ लिया तो भी आपकी जिंदगी खत्म, क्योंकि आपने अपने आप को नौकर कर लिया अल्लाह के घर में। और जब आपके बच्चे हो गए तो आप नौकर हो गए अपने बच्चों के, और बच्चों की तरबियत करनी है। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ने के बाद उसको बताओ कि अल्लाह एक है, नबी एक है, किताब एक है, उसी के बताए हुए तरीके पे जिंदगी हमने चलानी है। फिर मैं देखता हूं कि कहां पे जनरेशन गैप है। नई नई एडवांसमेंट्स आएंगी, आपके घर में इंटरनेट भी आएगा, केबल भी आएगा, आने दीजिए। लेकिन इंटरनेट से पहले, केबल से पहले, बिजली से पहले तो शराब भी मुआशरे में मौजूद थी। शराब को अपनी फ्रिज का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? बोलिए, वो मॉडर्निज्म में नहीं आता? वो दकियानुसी हो गया। सारी दुनिया यूरोप में शराब पीती है, आपने क्यों नहीं अपनाया? सरेआम वालिद के सामने बैठ के कश क्यों नहीं लगाते हो? आपको दकियानुसी कहेंगे? बोलिए, मेरी मां मुझे इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करने देती, चंगा कर दी, क्या लेना देना है आपका उसमें से? तेरा टारगेट हट जाएगा उससे, तेरी सोच बदल जाएगी। तू टिकटॉक पे अपना टाइम जाया करेगा, तू स्नैपचैट पे अपना टाइम जाया करेगा, तेरा फेसबुक से लेना देना क्या है? बोलिए, मुझे क्या लेना देना केबल नेटवर्क से? मेरा तो कोई भी सिलेबस इस केबल से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा तो कोई लेसन भी इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, मुझे यूट्यूब से लेना देना क्या है? मैंने कार्टून्स देख के क्या करना है? मैंने मूवीज देख के क्या करना है? कौन सा ऐसा शख्स है जो गाने सुन सुन के कामयाब हो गया है? बोलो, वो जुकरबर्ग गाने सुनता रहा है, फिल्मां वेखदा रहा है, KFC वाला बाबा इंटरनेट इस्तेमाल करके मशहूर हुआ है, फेसबुक यूज करके मशहूर हुआ है। आप कौन से मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं? कि मैं ब्याह ते जावांगा, मैं टाई नहीं लाई होगी तो कहणगे तू अमीरा दा मुंडा नहीं। जाइए बाहर के मुल्कों में जो लोग होकर आए हैं, कोई किसी वाल वेखदा नहीं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं। ते असीं नवे कपड़े पा के, घड़ियां छड़ियां पा के, हाथ भी इंज रखे होंदे ने कि लोकी वेखण साडे कोल शै की। आप अपना तारुफ करवाने से पहले अपना मोबाइल फोन अपने टेबल पे रखते हैं, फिर गाड़ी की चाबी आप टेबल पे रखते हैं, फिर बात करते हैं आप। हजरत बिलाल तो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन कौन सा एक ऐसा अमल था, चलते दुनिया में थे, आवाज जन्नत में आती थी। रजी अल्लाह अन्हु। हमारा नबी सोता चिटाई पे था और कहता था कि मैं दुनिया का बेहतरीन सुकून वाला इंसान हूं। पेट पे पत्थर बांधता था, ना मैकडोनल्ड खाता था, ना 2-2 रोटियां खाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा टेक्नोलॉजी को ना अपनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि काम ना करो अपने बच्चों के लिए, उनको रोटी टुकर देने के लिए, लेकिन कहा उस कुकड़ी की तरह रहो जो कि अपने परों में अपने बच्चों को रखती। तू इतनी मॉडर्न हो गई कि पहले रो रो के अल्लाह को बच्चे मांगती रही, तो जे बच्चे आए उन्होंने तू कार्टून वाले पासे ला देता। जे बच्चे अल्लाह ने तेनू दिते, तू उन्होंने कुरान पाक पढ़ने वास्ते मसीते भेज दिता। तू मुसलमान नहीं, तेनू कुरान नहीं आंदा, तेनू हदीस नहीं आंदी, तेनू ABC नहीं आंदी, तेनू ब्याह के लियांदा है? बोलो, फिर बच्चे तुझसे दूर ना जाए तो कहां जाएगा? एक बच्चा पैदा होता है मिसाल के तौर पर,
पहले दिन ही उठा के मैं उसको उसकी मां को दिखाए बगैर उसको अलग करके किसी और मां को दे देता हूं। मां ने अपना बच्चा देखा? नहीं। मां ने, बच्चे ने अपनी मां को देखा? नहीं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो बच्चा किसी और मां के प्यार में पल बढ़ रहा है और वो ही उसी को मां समझेगा कि नहीं समझेगा। जब उसकी असल मां 5 या 10 साल बाद जब उसको होश आएगा, नजर आएगी, तो खिंचाव होगा, क्या मेरी यह मां है? नहीं। तो ये जो कुदरती प्यार मां बच्चे का है, जब तक वो देखे ना वो पैदा नहीं होगा। हां, 5 साल तरबियत करने के बाद मां से जब बच्चा लिया जाए तो ऐसे होगा जैसे उसका कलेजा निकाल लिया है। कभी उस मां को देखा है जिस मां का बच्चा गुम हुआ होता है, ना उसको पीने का पता है, ना उसको खाने का पता है, ना उसको अपने दुपट्टे का पता है। उसको फिक्र है मेरा बच्चा गुआच गया है, क्योंकि उसने अपना प्यार उसमें कन्वर्ट किया होता है और वो असल में वो उसके जिस्म का हिस्सा होता है। तेरा बच्चा तो इससे दूर जाएगा, जनरेशन गैप आएगा, क्योंकि दुनिया जहान की चीजें तो तूने उसको दे दी, लेकिन असल जो तेरा देने की चीज थी वो तूने दी नहीं, प्यार। तूने अपने बच्चे को तो कहा आई लव यू, लेकिन उसको फील नहीं करवाया। तूने अपने बच्चे को तो कहा कि अल्लाह एक है, लेकिन फील नहीं करवाया, उसका डर नहीं दाखिल किया उसने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कहा, 4-5 कलमे भी उन्होंने रटवा देते, लेकिन नबी कहता क्या है उसकी मोहब्बत नहीं डाली। जनरेशन गैप तो होगा। अल्लाह ने अपने हकूक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक के बाद किन हकूक की बात की? वालिदैन की, बूढ़े वालिदैन की, कि जब वो बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक ना कहो, कंधे झुका के उनसे बात करो। और तेरी ही तरबियत है कि तू आज ओल्ड हाउस में है। किसकी तरबियत? तेरी तरबियत, क्योंकि तुझे 15-20 साल पता ही नहीं था तेरा क्या होना है। तूने उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भेजा, अपने से अलग किया, दुनियावी मोहब्बत उसमें डाली। तो जिस चीज की मोहब्बत डालोगे, इंसान फितरती अमल उसका ऐसा है, मोहब्बत उसमें वही आनी है। उन्होंने दसो केड़ा बंदा जाके यूके ते अमरीका जाके कहेगा मामा आई वांट टू कम बैक, आई मिस पाकिस्तान? केड़ा बच्चा कहेगा? वहां तो उस मुआशरे की ताकत इतनी है कि तू अपनी मां को भी भूलेगा, अपने बाप को भी भूलेगा। ते तेरा बच्चा खराब होया, तू क्यों भेजिया बाजार? तेनू नहीं सी पता? तू 2-3 दिन बाग में नहीं आया, चिड़ियां तेरे बाग में आ गई, सांप तेरे बाग में आ गए, तो तू 2-3 दिन क्यों गया बाग नू छड़ के कल्लिया? हाँ, उस वक्त तक तरबियत करनी है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, उनकी पहचान करवानी। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसको पता होगा कि माँ और बाप मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ दायां और बायां बाजू बन के मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे जिंदगी में चलना सिखा रहे हैं, मुझे जिंदगी के साथ लड़ना सिखा रहे हैं। आपने क्या करना है? जब आपके बच्चे हो जाएं, आपने उनको हमेशा सीने से लगा के रखना है, लेकिन मुआशरे की मुश्किलात उनको सिखानी है, उनको पैम्पर नहीं करना। उनके दिलों में अपनी मोहब्बत और इज्जत डालनी है। कब? अल्लाह और नबी की मोहब्बत के बाद। हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, फजर के वक्त हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, हम उठ के नमाज पढ़ते हैं, उनको नहीं उठाते। बेचारे सुते थे ने, बेचारे सुते थे ने, लेकिन वो जहन्नम की आग में सो रहे होंगे। और अल्लाह आपसे पूछेगा कि मैं नबी के मुंह से कहलवाया था कि हर बंदा जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने अपना मैक्सिमम टाइम उनको देना है, बिल्कुल इस पौधे की तरह
कि एक अच्छा माली सुबह आके भी इसको देखता है, दोपहर को भी आके इसको देखता है और रात को भी आके इसको देखता है। और आपके बच्चों के माली दो हैं, एक आपकी माँ, उस बच्चे की माँ, और एक बाप जो बाहर गया पानी लेने के लिए, बाहर गया खाद लेने के लिए, बाहर गया पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स लेने के लिए, और माँ हर वक्त इसको कुकड़ी के परों की तरह इस बच्चे को अपने साथ रखती है। फिर देखें आपका बच्चा आपसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? मुड़ मुड़ तुहाडे को लाएगा। अब दुनिया जहान की फैसिलिटीज उसको देनी है आपने, मुआशरे के साथ चलना है आपने। क्योंकि मुआशरे में अगर आप ये कहें कि मैं वालिद एफए और बीए किया था, मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा था, तू ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ता, ये अप्रोच आपकी खराब है। मैं ते स्लेटा ते लिखदा रहा, तनु मैं कॉपी क्यों दवा, ये सोच आपकी खराब होगी। अब इसको ब्रिज कैसे किया जा सकता है वो सुनिए। ये जो डिपार्टमेंट है वालिदैन का, ये इसने अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी शादी अल्लाह करे अच्छी जगह पे हो और आप लोग पढ़े लिखे हो, शादी होने के बाद भी आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। ये आपका बच्चा और आप, ये मेरी बात गौर से सुनिए, नाल नाल काम करते जाओ, मेरी बात गौर से सुनिए, साथ साथ काम करें, साथ साथ जो बच्चा पढ़ रहा है आप भी पढ़ें। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इधर आ रही हैं। हमारे दौर में वो रील वाला कैमरा होता था जिहदे 25 या 26 फोटो होंदियां हन, उस तो बाद ज्यादा नहीं सा ले सकते। हम तो उसी सोच में हैं। इन्होंने क्या करना है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनको इसके मुताबिक अपग्रेड करके, ये आपका बच्चा खड़ा है, आप भी साथ खड़े हैं, आप भी सेल्फी लें। सेल्फी लेना गुनाह नहीं, उसको भी पता चले। वो कहता रहता है पापा सेल्फी लें, सेल्फी यार चढ़ यार मुझे नहीं पता। आपने क्यों उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डालना है? क्योंकि ये जिंदगी की जरूरत है। आप तो छत पे सोते थे, अब एसी आ गए हैं और ना ही वो मौसम है। बच्चा कहता है कि मैं छत पे नहीं सोना, कोई नहीं एसी ले आओ, तुसी भी छत दे उत्ते चुक के उस कमरे च आ जाओ, उसके साथ चले। द रीजन यू नीड टू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर किड्स लाइफ। आपने अपने बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगियों को बदलना। अगर आप रेस्टोरेंट नहीं जाते थे, आजकल के दौर में अल्लाह ने पैसे भी दिए हैं, जाओ रेस्टोरेंट खाओ, लेकिन ऐसी तब्दीली अपनी जिंदगी में और बच्चों में ना लेकर आए जिससे आपका कल्चर तबाह हो। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ऐसा ना हो कि हम हेयर स्टाइल इस तरह के बनाएं, फॉरेन कल्चर को कॉपी करें और अपनी भी भूल जाए क्या है। इंटरनेट इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, अपने बच्चों को मोबाइल फोन देना बुरी बात नहीं है, उसके नुकसानात ज्यादा हैं। ऐसी चीज जो कि हमारा कैरेक्टर तबाह करे लेना चाहेंगे आप? किसी बच्चे को वर्स आती है, कोटेशन आती है सरासिफ, जिसमें एंड पर आता है इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सर को दीजिएगा माइक जल्दी जल्दी। अगर पैसा खो गया आपसे तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं खोया। अगर आपकी सेहत चली गई तो इसका मतलब है कि कुछ खोया है। पैसा खोया गाली कोई नहीं, अगर सेहत आपकी खो गई है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ खो गया है। And if character is lost, everything is lost. रिपीट कीजिए, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब आपका किरदार ही नहीं है, सेहत है, पैसा है, तो मतलब सब कुछ गया। केबल आने से हमारे मुआशरे में तबाही बर्बादी आई कि नहीं आई? It did. नहीं आई? नहीं असी लवानी है, इस घर केबल नहीं लगी दी कि उन्होंने विआह नहीं होंगे। जिस घर केबल नहीं लगी दी उन्हों दी नमाज नहीं होंगी। जिस घर केबल नहीं लगी दी उन लोगों को दकियानूसी लोग कहते हैं। जिन लोगों के घरों में वाईफाई नहीं है वो जिंदगी के साथ नहीं चल रहे। क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? अगर इतना ही फायदा आपको टेक्नोलॉजी, मेरी माँ इंटरनेट वाईफाई वगैरह है, तो मुझे बताएं कि इस इंटरनेट और वाईफाई ने कौन सा अल्लामा इकबाल पैदा किया है? दसो। इस वाईफाई और इंटरनेट और केबल ने कौन सी वो परवीन शाकर पैदा की है? बोलो।
जिसकी बातें करते हैं आप, इस टैब ने, इन छोटे छोटे खिडौनों ने अपने बच्चों को देके, कौन सी आपने वो जो मर गई है बेचारी, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अरफा करीम पैदा की ना। बोलो केड़ी अरफा करीम पैदा की थी? और आपने गैलेक्सी S7, S8, S9, 10 रख के क्या मुआशरे को दिया है? आपके पास अगर व्हाट्सएप का कनेक्शन है या इंटरनेट वगैरह है तो आपने क्या कमाल कर लिया, मुझे ये बताएं। बोलिए, कोई बच्चा खड़ा होकर मुझे बताए कि इससे मैंने अपने वालिदैन से मोहब्बत करना शुरू कर दी है, मैं हमसायों का ध्यान रखता हूं, मैं वक्त पे नमाज पढ़ता हूं। क्या कमाल आपने कर लिया? वो कर्व स्क्रीन वाला टेलीविजन किसी जमाने में हुआ था, आजकल फ्लैट स्क्रीन वाला टेलीविजन आपके घरों में आ गया है। इसके आने के बाद क्या तब्दीली आप में आई है? बोलिए, सिवाय आपकी जिंदगियों में आसानी के अलावा कुछ नहीं हुआ। मेरी नजर में इंप्रूव कर सकता हूं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हमारे मुआशरे में। पहले वो मट्टी के कुग्गू कोड़े हुआ करते थे, अब वही कुग्गू कोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, और आपका और आपके बच्चे और आप पहले से ज्यादा खेलना शुरू कर दिया आपने, पहले से ज्यादा आपने वक्त जाया करना शुरू कर दिया है। आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं है। मुझे बताएं कितनी देर रेस्ट करते हैं आप? रात दे 12-2 बज जाते ऊंग रहे होते हैं, मोबाइल नहीं तुसी छड़ दे, टीवी नहीं तुसी छड़ दे। इसने क्या दिया है आपको? वालिद अपना काका पकड़ के बैठा हुआ है, मां अपना काका पकड़ के बैठी हुई है, बच्चे अपने काके पकड़ के बैठे हुए हैं। क्या फैमिली सिस्टम है? क्या एक दूसरे की केयर है? आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके क्या बताओगे कि साढ़े कोल भी मोबाइल है? तो ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। आपका लाइफ सिस्टम तबाह हो रहा है, आपका फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, आपकी जिंदगियों में सुकून नहीं है सुकून? जितनी जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है उससे दोगुना इंसान परेशान हो रहा है। तो कहीं कमी नहीं, यहीं कमी है कि जो असल खुराक इसको देनी थी वो हम नहीं दे रहे। हम अपना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे रहे। हम अपनी दुनिया और जन्नत भी खराब कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ चीजें मेरे जहन में आ रही थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अल्लाह ने तौफीक दी, अपने आप को ही मैंने कहा और फिर आने वाली जो नस्ल है उसको कहा, जिनकी भी शादियां होनी हैं, थोड़ा कमा लें, थोड़ा खा लें, ईमान बचा लें, प्यार बचा लें, प्यार कमा लें, बुढ़ापा बचा लें, जन्नत कमा लें, जिंदगी बचा लें, खुशियां कमा लें, खानदान बचा लें, ईमान बचा लें और अपनी शनाख्त बचा लें। कुछ बातें पुराने वक्तों की आपसे करता हूं मैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से 1000-1500 साल पहले अल्लामा फरमाते हैं आपसे, हम तो जवान नहीं रहे, ये जो नौजवान है ना, असी तो 50 जवान हो गए थे, नौजवान। क्या फरमाते हैं? कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। हमें कह रहा है अल्लामा, तदब्बुर किया, अफला यतदब्बरून, कभी सोचा कि तू किस लड़ी से है? तू मुहम्मदी है। सोचा कभी कि साढ़े नाल बनेगी? तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में,
कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे दारा। उस कौम ने पाला उस दौर का एक दारा सरदार हुआ करता था जो जुल्म डांटता था। आप उस लड़ी में से हैं कि उस दारा के ताज को कुचल डाला था। कहते ना काका बह मेरे कोल तन मैं दसा तू कौन से, तू फिक्र करके तू कौन था और आज तू कौन है। आगे अल्लामा क्या फरमाता है, तमद्दुन आफरी हुल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतर बानों का गहवारा। जिंदगी अपनी सहरा में गुजारते थे और शुतर मुर्ग की तरह वो दौड़ा करते थे। साढ़े कोल टुरिया नहीं जाता। ये आपकी बात हो रही है, आपके आबाओ अजदाद की बात हो रही है। आसान में आपको शेर सुनाता हूं। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने, मांगते भी थे लेकिन उनमें गैरत थी कि मुनअम को गदा के डर से बख्शिश का था ना था यारा। गरज में क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। मनु समझ नहीं भी आती मैं तुहानू की दसा कि वो सहरा में रहने वाले मुसलमान सहाबा कराम क्या थे। जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। अगला शेर, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं। अल्लामा इकबाल के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं चाहूं तो नक्शा खींच दूं, मगर तेरे तहय्युल से फजू तर है वो नजारा। लेकिन तू उस नजारे को विजुअलाइज कर ही नहीं सकता, तू उसको परसीव नहीं कर सकता। करना चाहूं तो मैं कर दूं लेकिन तू उसको सोच भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। तुझे हम सब लोगों को निस्बत कि तेरा उससे क्या रिलेशन। जिसकी बात मैं कर रहा हूं नबियों पैगंबरों की, सहाबा कराम की, तबा ताबईन की, सूफिया कराम की मैं बात कर रहा हूं। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती कि तू गुफ्तार, तू सिर्फ गल्लां करने वाला है। वो किरदार थे, कैरेक्टर थे वो। तू साबित कि तू बैठा रहना है, तू हिलदा नहीं करदा कख नहीं। वो सैयारा, वो घूमने फिरने वाला। कितनी अच्छी तशबीह दी। कौन? मैं। किसकी बात? दादे परदादे की कर रहा है। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सलफ सालफीन से जो हमें मीरास मिली, जो हमें विरासत मिली, वो हमने गंवा दी। सुरैया से जमीन पर आसमाने हमको दे मारा। वो सुरैया, वहां पे अल्लाह ताला ने हमें पहुंचा दिया, फिर वहां से गिराया। हकूमत का तो क्या रोना, वो एक आरजी शय है, नहीं दुनिया की आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आपके सलफ सालेहीन थे, दुनिया में मुस्लिम साइंटिस्ट आप थे। उनकी किताबें यूरोप में चली गईं, उन्होंने आपका कल्चर लिया है मेरे पुत्रों। उन्होंने अपना किथों लेना सी, आपका चुराया। फिर हम देखते हैं तो दिल होता है सी पारा। ऐ तो मेरे प्यो ने लिखी सी, ऐ तो मेरे दादे ने लिखी सी। ये तो हमारा टेस्टामेंट चुरा के ले गए हैं। कौन सी ऐसी बात है जो कि हमें इस दुनिया में सक्सेस नहीं देती अगर अपने टेस्टामेंट को देखें तो? हमें सोचना होगा। अब मैं चलता हूं, ये तो हाल हुआ, हमने वो छोड़ा, फिर अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, उनकी तरबियत नहीं की। अब अंग्रेज शायर ने एक पोएम लिखी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। गौर से देखिए और सुनिए भी। I'm really not comfortable. ये आपका बच्चा आपसे कलाम कर रहा है आज से 25-30 साल बाद।
My child arrived just the other day. मेरा बच्चा आया. He came to the world in a usual way. बिल्कुल उसी तरह आया जैसे हम लोग आते हैं. But there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. की कहता है? उसने चलना शुरू किया जिदों मैं कार नहीं सा. And he was talking before I knew it. And as he grew, he would say, I'm gonna be like you, Dad. अब्बा जी मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ बनना है. You know, I'm gonna be like you. पता है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ अब्बा जी बनना है. इसीलिए हम कहते हैं कि my ideal personality is my father. कोई बंदा भी किसी और की बात नहीं करता है. And the cat in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man in the moon. When you coming home, Dad? अब्बा जी किदों घर आना जे? I don't know when. पुत्र मैनू नहीं पता किदों आना है. Well, we'll get together then. लेकिन ਅਸੀਂ जल्दी इकट्ठे हो जावांगे. बच्चा उड़ीकता रहा, पुत्र मैं आ जावांगा. अब्बा जी किदों घर आना जे? You know, we'll have a good time then. मैं जदों आवांगा ना काका बड़ा मजा करांगे. कहते नहीं हमारे वालिद. My son turned 10 just the other day. मेरा बच्चा 10 साल का हो गया है. ते मेरा प्यो कम ते पैसे भेजी जांदा, पैसे भेजी जांदा. He said, thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. अब्बा जी बड़ी मेहरबानी तुसी मनु ए बॉल ले आके देता है. आगे क्या कहता है? Come on, let's play. चलाओ फिर खेलिए. Can you teach me to throw? मुझे सिखाओ थ्रो कैसे करना है. I said, not today. मेरा पुत्र आज नहीं, काम पे जाना है, मैं क्लास पढ़ानी है. I got a lot to do, he said. That's okay. बच्चा मेरे बड़े काम ने करना है. बेचारा कहना चलो कोई गल नहीं. And he walked away. But his smile never dimmed. हंसी उसकी स्माइल मुस्कुराहट कम ना हुई. It said, I'm gonna be like him. Yeah. मैं इसी की तरह बनूंगा, इसी की तरह बनूंगा. अभी भी बच्चा कह रहा है कि मैं अपने प्यो वंगरा बनना है. You know, I'm gonna be like him. अब वो ख्याली बातें कर रहा है. तुम्हें पता है इधर उधर जो लोग बैठे हैं उनको कह रहा है कि मैंने अपने बाबा की तरह बनना है. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man in the moon. When you coming home, Dad? अब्बा जी किदों घर आना जी? I don't know when. पुत्र मनु नहीं पता. Well, we'll get together then. हम जल्दी इकट्ठे होंगे मेरा पुत्र. You know, we'll have a good time then. हाँ काका बड़ा मजा करेंगे जब हम इकट्ठे होंगे. Well, he came from college just the other day. हुण मुंडा कॉलेज जाना शुरू हो गया. मैं नहीं लिखी, अंग्रेजा ने लिखी थी. घर आता है कॉलेज से. So much like a man, I just had to say, so I'm proud of you. Can you sit for a while? बड़ा हो गया है, फहर करना शुरू कर दिया. मेरे कोल बैठ. He shook his head and he said with a smile. अपना सर हिलाया और कहा, what I really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later. Can I have them, please? अब वक्त आ गया है जब उसको वो कहता है कि ओ मुंडिया मेरे कोल बैठ. लेकिन बच्चा कहता है नो, मुझे गाड़ी की चाबियां दे. टाटा बाय बाय. किसने किया ये सारा कुछ? आपने. अब उसको आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अपने आप को रिप्लेस किया था गाड़ी से, टैब से, टेलीविजन से, बाइसिकल से, कुगू घोड़ों से. अब आपके पास वो क्यों टिके? And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man in the moon. When you coming home, son? चाबी लेके निकल गया. सॉरी मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा. चाबी लेके निकल गया. अब बाप उससे पूछ रहा है पुत्र किदों घर आना है? उस वक्त जब बाप की कोई एनर्जी नहीं बाकी रही काम करने की. बूढ़ा, उसको सहारे की जरूरत. तो उसका सहारा कौन? उसके बच्चे. उन पूछता काका किदों घर आना है? तो क्या कहता है? आई डोंट नो व्हेन. अब्बा जी मैनू नहीं पता किदों आना है. मेरी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेरा काम है, कारोबार है. बट विल गेट टुगेदर देन डैड. लेकिन जल्दी इकट्ठे होंगे अब्बा जी. यू नो विल हैव अ गुड टाइम देन. तो फिर हम मजा करेंगे. आई हैव लॉन्ग सिंस रिटायर्ड एंड माय सन्स मूव्ड अवे. मैं ते हुण मुक मुका गया वां ते मेरा बच्चा टुर गया है. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I could find the time. अब्बा जी अल्लाह दी कसम मैं तुहाडे कोल आवांगा, मेरे को टाइम है नहीं. You see, my new job's a hassle and the kids have the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. उन्होंने अपने बच्चे नहीं पा गई. लेकिन असल उसकी जो मिरास थी उसने उसकी परवरिश इस तरह नहीं की. It's been sure nice talking to you, Dad.
It's been so nice talking to you, Dad. And as I hung up the phone, it occurred to me, he's grown up just like me. ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ. My boy was just like me. और उसने कहा ना मैंने अपने अब्बा की तरह होना है. याद आया पीछे का, मैं अपने अब्बे वांगा बनना है, मैं अपने अब्बे वांगा बनना. तो फिर बना है वो. अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए. ये ना हो कि कल कला आपके बच्चों का भी यही हाल हो. अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के बाद आपने उनसे प्यार करना है, उनको वक्त देना है, उनका दोस्त बनना है, उनसे अटखेलियाँ करनी हैं, उनको ज़िंदगी का मकसद सुनाना है, बताना है, उनके साथ चलना है, ताकि उनको फील हो कि वाकई वो अकेले नहीं हैं. माँ की मोहब्बत का वाकई उस बंदे को अंदाज़ा होगा कि जब माँ दुनिया से चली जाएगी. इसलिए अपने आप से वादा कीजिए कि दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आ जाएं, हम चांद पे भी क्यों ना चले जाएं, हमारा अकीदा नहीं बदलना चाहिए, हमारी सोच नहीं बदलनी चाहिए, हमारे बिलीफ्स नहीं बदलने चाहिए, हमारी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए. रोटी अगर सोने की भी हो जाए तो हमारे अल्लाह को याद करने के तौर तरीके नहीं बदलने चाहिए. हमसायों के हुकूक वही के वहीं रहेंगे, वालिदैन के हुकूक वहीं के वहीं रहेंगे, मुआशरे की बेहतरी के तौर तरीके वही रहेंगे, एहसास वही रहेगा, सैक्रिफाइस वही रहेगा, हमदर्दी वही रहेगी, लज्जत वही रहेगी, और माँ बाप वही रहेंगे. माँ बाप तो नहीं बदलते, बच्चे वही रहेंगे, प्यार वही रहेगा, अकीदा वही रहेगा, जिंदगी वही रहेगी. हाँ, पहले कच्चे मकान में थे, अब पक्के मकान में आ गए. हाँ, पहले पैदल थे, अब साइकिल पे हैं. पहले साइकिल पे थे, अब मोटर बाइक पे हैं. लेकिन इंसान तो वही है. जूता बदलेगा पाँव नहीं, दुपट्टा बदलेगा सर नहीं, शैम्पू बदलेगा बाल नहीं, काजल बदलेगा आंखें नहीं, झुमका बदलेगा कान नहीं, नोज पिन बदलेगी नाक नहीं, चश्मा बदलेगा आंख नहीं, पानी बदलेगा प्यास नहीं, सोच बदलेगी रूह वही रहेगी, इंसान बदलेगा एहसास वही रहेगा. लोग नए होंगे, अकीदा एक ही होगा. आइए उस माँ की मजबूरी तकलीफ भी सुन लें और फिर इसको वाइंड अप करते हैं. मैं बड़ी लंबी बातें करता हूँ. अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हुए तो फिर आप पूछ लीजिएगा. मुझे बहुत अच्छा लगता है जद्दा पुत्र बार गया, खाली होकर बार गया. देख लिया उसका हाल, सोना दिया, चांदी दी, बेहतरीन कपड़े दिए. बाप का प्यार नहीं. और वो कहता है कि मैं हंसता हूं लेकिन खोखली हंसी, कि बाप तूने दुनिया की जो सारी चीजें दी हैं कभी सीने से लगा है? कभी? बाप को जाके गले लगे, माँ को जाके गले लगे, मामा नहीं मिलती. वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए. वो वालिदैन जिनको देखने का भी सवाब है कि मस्जिद की लहजा, वो वालिदैन जिनको देखने का सवाब है, वो बच्चे जिनको देख के माँ की प्यास खत्म हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है. का हाल क्या किया? तेरे टैब में वो लज्जत नहीं है जो माँ की गोद में है.
तेरे फिल्म वीसीआर मौसीकी लता मंगेशकर के गानों में वो लज़्ज़त नहीं है जो माँ की लोरी में। बुढ़ी जिन्ना मर्जी चंगा परोठा बनाए, माँ पराठा बनाए, उसे ऐसा नहीं। और तूने उनका क्या हाल किया? I beseech you, ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਏ, ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਏ। ਡਾਲਰ ਪੌਂਡ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਬੈਠੀ ਐ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਬੈਠੀ ਐ। ਕੁੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਏ, ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਏ। ਘਰ ਪਰਾਡੋ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਉਂਝ ਵੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਹੀਏ। ਪਿਓ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣੇ। ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ। ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੰਝੂ ਡਹਿ ਪਏ, ਇੰਝ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਡਹਿ ਪਏ। ਫੇਰ ਮਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਅੜੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ। ਛੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ। ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹ, ਸੁਬਹ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਗਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰ ਗਿਆ ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ। 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਵੀ ਪੁੱਛਨੀ ਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾੜੀ ਏ, ਅਦਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਵਾੜੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਜੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਏ। ਜਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਆ ਖੋਲੇ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਦੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਕਮਾਈਆਂ ਅੜੀਏ, ਪਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਅੜੀਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਵਾਪਸ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਵਾਪਸ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ। Thank you very much, Barsar Zak. Thank you very much, Zak.